Javed Pratap Singh, and some of the details is already delivered by Ram. Thank you very much for those all words. Before starting up some of the things, I just want to know how many of you are students, please. Okay. Thank you. Thanks a lot to raise your hands. Okay. Moving forward, जैसे कि हमने कहे कि काफी चीजें मेरे बारे में. So there are some of the things which I want to highlight about me. I was actually at the initial stage of my life when I was a student. I prepared for something which was like regular in my family. Actually, that was sports. मुझे समझ पा रहे हैं? Should I use the different language to make you comfortable in that? मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Okay, very much well. Okay. So, क्योंकि मेरे घर में स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था, इस वजह से I started to do something there in that. लेकिन जैसा कि कुछ बच्चों ने यहाँ पे सवाल पूछा था, should we follow the passion or should we follow something which our parents are instructing us? ये कॉमन सी बात होती है. There is a thing which I want to highlight here. Everyone, Adan. Please listen to me. There are some of the things which are very much important for you all. So, मेरे साथ भी वही हुआ. मैं जो सोच रहा था उसमें मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा था. I was not that much good in that. Ultimately, I followed those all instructions given to me by family, and I started to get the education regularly. मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, and afterward मुझे PhD में रजिस्ट्रेशन कराया गया पापा के फोर्स की वजह से, and I got awarded with that degree in 2005. इसके बाद भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो बजाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. The first job which I did actually, that was Genpact. मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने या कुछ लोगों ने यहाँ पे बैठे हुए सुना हो Genpact India Private Limited. This is one of the biggest BPO. One of the biggest BPO in India. इससे बड़ा BPO नहीं है कोई. And it is really a surprising thing to let you know about that. मैंने वहाँ पर ग्रेजुएट के नाम से जॉब किया था. I didn't disclose. Yes, I submitted some of my documents there of PhD even. But मैंने वहाँ पर जॉब किया सिर्फ एक ग्रेजुएट के नाम पर. मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया I'm a doctor. And I worked there as a voice and accent trainer. Voice and accent trainer के तौर पर मैंने वहाँ पे लंबे टाइम काम किया. And because of the course of my family, because my complete day routine was changed. दुनिया दिन में जगती थी, मैं रात में जगता था. Because I was working, I was giving training to the students, to the trainees to those all who were going to work for the US. US के लिए जो काम करने वाले थे. तो ultimately वहाँ से फोर्स की वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, and I started teaching in colleges. So यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मैं अपने कॉलेज के बारे में दे दूँगा. वेरियस कॉलेजेस में काम कर चुका हूँ मैं. मगलातन यूनिवर्सिटी उसमें से है, IIMT यूनिवर्सिटी उसमें से है. इसके अलावा कुछ कॉलेजेस हैं, those are there in हरियाणा. But right now मैं BSA कॉलेज में हूँ, तो some of the things which are about BSA, then we move forward to know some of the very much basic thing which comes to the life of all the students to disturb their mindset as well as their state. How much here? उन कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके मेंटल स्टेटस और फिजिकल स्टेटस दोनों को डिस्टर्ब करता है. ठीक है, तो जैसे कि BSA इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सभी लोग जानते होंगे, मथुरा का एक पार्ट है, एंड इट गॉट एस्टैब्लिश्ड इन 1997. सो जिस संस्था की तरफ से चलाया जाता है दैट इज श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल, और ये 100 साल पुराना एक ट्रस्ट है जो लगातार एजुकेशन और सोशल वर्क में काम कर रहा है. There are some of the various colleges, PG colleges, polytechnic as well as engineering college जो इसकी तरफ से रन किया जाता है. These are the details of those all, like चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज, चंपा अग्रवाल बाल विद्या मंदिर, BSA डिग्री कॉलेज, बाल चिकित्सा संस्थान, प्रेम देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज, BSA कॉलेज ऑफ एंजियो एंड टेक्नोलॉजी, रमलाल शोरावाला आई हॉस्पिटल, BSA गर्ल्स वोकेशनल कॉलेज, BSA नर्सिंग स्कूल, ASM एंड ASM पॉलिटेक्निक. ये BSA कॉलेज जहाँ से एफिलिएट है, अप्रूव्ड है AICTE की तरफ से.
आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना सभी? Yes, sir. I'll change my way so that I can be visible to everyone and can have my eyes very much near to every one of you. Okay, so approved है AICTE से All India Council of Technical Education and affiliated है Dr. APJ Abdul Kalam Technical University से, जिसको पहले UPTO बोला जाता था. Right now it is called as AKTU. There are some of the courses which we people are running regularly, like BTech in Computer Science, BTech in Civil Engineering, BTech in Electronics and Communication Engineering, as well as BTech in Electrical Engineering, Mechanical Engineering, as well as a bachelor course in Pharmacy. As the PG courses, there are two: Master of Business Administration and Master of Computer Application. Some of the polytechnic courses जिनको हम डिप्लोमा बोलते हैं, those are Mechanical Engineering, Production Electronics Engineering and Diploma in Pharmacy. ASN कॉलेज जो 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था इसी संस्था की तरफ से, जब हमारे सर चेयरमैन थे उस समय भी, सो इट्स अ गुड थिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है. देयर आर सम ऑफ द डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स, लाइक 50,000 बुक्स, सम ऑफ द बुक बैंक फैसिलिटीज, 50,000 वॉल्यूम ऑफ BIS कोड. कुछ चीजें समझने लायक हैं, कुछ चीजें नहीं है, बिकॉज़ BIS कोड इज सम ऑफ द स्पेशल थिंग व्हिच इज रिलेटेड टू पब्लिकेशन हाउस. ओके, इसके अलावा Moodle बेस्ड क्लासेस हैं, वाईफाई कैंपस है, NPTEL लेक्चर्स रेगुलरली डिलीवर किए जाते हैं स्टूडेंट्स को. ऑडिटोरियम इज वेरी मच रिनाउंड, बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा फैसिलिटेटेड है फॉर स्मॉल एंड लार्ज गैदरिंग एज वेल. These are two different areas where we regularly arrange some of the different things, activities, conference on seminar hall, faculty quarters, boys hostel, girls hostel, and this is a respected chairman sir, Dr. Sri अग्रवाल जी. एक बहुत अच्छी बात इनके बारे में ये है कि ये इस कॉलेज को ज्यादा अच्छा इसलिए और समझ पाते हैं बिकॉज़ ही इज एन इंजीनियर. बहुत पहले इंजीनियरिंग की थी, तो इनका जो सपोर्ट है, जो फैसिलिटेशन है, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड रेगुलरली व्हेन ही गॉट द चेयरमैन एज वेल एज व्हेन ही वाज द वाइस चेयरमैन टू द कॉलेज. सो दिस इज वी आर लुकिंग फॉर. थैंक यू. एज अ वाइस चेयरमैन श्री अरविंद जी अग्रवाल, renowned lawyer हैं as well as social worker. Director SS Agrawal sir, Registrar Bhagwan Singh ji, and Director ASM Polytechnic Dr. Loken Sharma. So these were some of the things which are directly associated to our institution, and some of the glimpse of all those pictures and activities which regularly happen there. So these are some of the things I am sure all of you can have a look. ये ceremonies हैं जो 26th of January and 15th of August को regularly होती हैं. And these are some of the visits. Our recruiters regularly in which students are being hired. Thank you for this. यहां से लेके चलते हैं आपके मतलब की चीज को. चलिए, एक और जानना चाहूंगा, कौन सभी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? क्या मेरे हाथ रेज करने का पर्पस बता सकते हैं आप लोग? Sir, learning has no age. Learning has no age. Say again. Learning has no age. Exactly. स्टूडेंट नाम सिर्फ उनको नहीं दिया जाना चाहिए जो एजुकेशन ले रहे हैं, those who are getting the like completing their some of the courses from the college, from the institution, from anywhere. Students हर कोई है, even sir, even मैं, all the people who are sitting, all are getting education, all are getting knowledge, all are getting experience from the market. And this is the reality. This makes them a students regularly. यहाँ पे हम उस चीज को लेके बात करेंगे जिसको लेके ज्यादातर एक खौफ रहता है, परेशानी रहती है. यहाँ पे एक टाइटल, बच्चों प्लीज, all the students please, I want every one of you to look at this side. Everyone, okay. यहाँ पर एक क्वेश्चन है and I want you people to answer me for that. यदि हम सब्जेक्ट्स को अलग हटा दें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यदि हम सब्जेक्ट्स को अलग हटा दें तो क्या वो एक चीज है जो हमें काफी डर के तौर पे सामने आती है. और ये खास तौर से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज़ इट इज देयर इन आवर स्टेट. यूपी खास तौर से माना जाता है हिंदी भाषा के लिए. हाँ या ना? हाँ या ना?
वेरी मच वेल। हिंदी भाषा का यूज कभी कभी कई जगह हमको तोड़ता है। We lot many times feel that we are not able to explore ourselves at that standard where we should, where we can. Am I clear? जहां पर हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। इस एक परेशानी को लेकर मैं थोड़ा सा हेजिटेशन हटाना चाहूंगा। If some of you do have that uncomfortability to use English language, ज्यादातर लोगों को आती है। चलिए, तो इसको हम चालू करेंगे भाषा के तौर पर। सब्जेक्ट वाला हटा दिया जाए तो हमारी भाषा हमारे लिए रोड़ा, एक्सट्रीमली सॉरी द हिंदी वर्ड व्हिच आई एम यूजिंग फॉर ऑल ऑफ यू, एक रोड़े के तौर पर इट कम्स एज अ बैरियर टू अस कि ये हमें परेशानी क्यों क्रिएट कर रही है। The first thing is that because this is not our language, ये हमारी भाषा नहीं है। यदि ये हमारी भाषा नहीं है तो why do people are forcing ourselves to use this? यदि हमारी भाषा नहीं तो इसे यूज क्यों कर रहे हैं? The basic, the root cause is सभी लोग इस भाषा में कंफर्टेबल फील कर सकते हैं अराउंड द ग्लोब, because we people are regularly getting that education which is increasing our skills instead of our knowledge. हमारा ज्ञान बढ़ाया जाए, उसके कंपैरिजन में हमारे स्किल्स पर वर्क किया जाए। And when we are improving, when we are working to improve our skills, जब हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, वहां पर हमें अपने स्किल्स अपने कॉलोनी, अपने सिटी, अपने स्टेट में ही जरूरत नहीं पड़ती। We need to show those all skills there around the globe. आए ना? अब क्लियर? Yes, sir. So थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं कि क्या वाकई में ये ऐसा पिक्चर में आना चाहिए? Should it come to have such a big fear, or I should say the biggest fear for all the students who use English language as an uncomfortability? क्या हमें वाकई में इंग्लिश को एक uncomfortability के तौर पर लेना चाहिए? The answer is no, by no means. किसी भी स्तर से नहीं। चलिए जानते हैं। डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। We will get to know about the difference between हिंदी and English. आप में से ज्यादातर बच्चे इस बात को बहुत आसानी से कह पाएंगे। हिंदी में आप सभी कंफर्टेबल हैं? If you are quite comfortable in Hindi language, please raise your hand. Those who are in support to this. Very much well. Please get down. How many of you are really comfortable to be very much perfect, efficient, to express yourself, your knowledge, your skills there in English language? Raise your hands. Look at the hands. There are only some of the students. Yes or no? Yes, sir. There are only some of the students. जो बच्चे uncomfortability feel करते हैं, those who are regularly getting uncomfortability in this language, उसके पीछे का reason जानते हैं? That can be visible. वो विजिबल हो सकता है with the differences. यदि हम हिंदी और इंग्लिश को डिफरेंशिएट करें एक दूसरे के साथ, प्लीज टू दिस साइड एवरीवन, यदि हम इन दोनों भाषाओं को डिफरेंशिएट करें तो you people will be amazed to know that Hindi is multiple times tougher than English language. Do you people know this or not? Yes, sir. Do you people know this or not? Yes, sir. हिंदी भाषा बहुत ज्यादा टिपिकल है कंपैरेटिवली इंग्लिश के। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है हमारी भाषा में। हिंदी भाषा में हर चीज का एक जेंडर होता है, हर चीज का देयर इज अ स्पेसिफिक जेंडर ऑफ ऑल द थिंग्स। यदि मैं माइक की बात करूंगा तो मैं कभी भी नहीं कह सकता माइक रखी है, सोफा पड़ी है, कुर्सी पड़ा है, रूम खुली है, दरवाजा खुली है, खिड़की खुला है। Do you have this kind of uncomfortability here in English language? क्या ये uncomfortability आपकी इंग्लिश भाषा में है क्या? सोच के देखिएगा, बहुत ज्यादा टिपिकल है, लेकिन आप लोग उसमें परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हैं because you are using this language from the very much early of your life. आप लोग इस भाषा को अपने शुरुआती दिनों से, जहां से आपने सुनना चालू किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लिसनिंग स्टैंडर्ड, आप इस भाषा का यूज कर रहे हैं। आप लगातार इस भाषा को उस समय से यूज कर रहे हैं जब आप सेंस में भी नहीं थे। हाँ या ना? Yes, sir. ओके, सो एक डाउट जिन बच्चों को इंग्लिश को यूज करने में रहता है कि ये टिपिकल है, प्लीज कीप दिस वेरी मच असाइड, वेरी मच फार फ्रॉम यू कि ये भाषा टिपिकल किसी भी स्टैंडर्ड से नहीं है। दिस इज नॉट अ टिपिकल लैंग्वेज। मैं फोनेटिक एक्सपर्ट हूं, आई डू नो हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू यूज दिस लैंग्वेज इफेक्टिवली टू मेक द पीपल कन्विंस। लेकिन क्या वो स्टैंडर्ड हम अचीव कर सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली, दैट कैन बी अचीव्ड बाय ऑल ऑफ अस। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। ओके,
यूएस को ज्यादातर लोग जानते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. चाहे वो हॉलीवुड के नाम से हो या फिर एक द बिगेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन के तौर पर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. Strongest nation, USA. And if I'm not wrong, most of you want to go there, most of you want to get education from there, most of you want to be like the people, those who are living there in the USA. Yes or no? हाँ या ना? हम चाहते हैं उनके जैसा? हाँ या ना? कुछ बच्चे नहीं कह रहे, बट द रियलिटी इज हम उसको फॉलो करते हैं। हमारी तो छोड़िए बच्चों, देयर आर टू मेनी ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, इवन दोस हु आर फॉलोइंग सम ऑफ द रूल्स, सम ऑफ द रिचुअल्स, सम ऑफ द थिंग्स एज दे आर लिविंग देयर। इतने सारे प्रोनाउंसिएशन हमारे देश में आज की डेट में, हमारे देश में नहीं कितने देशों में चल रहे हैं जो यूएस के हैं इंस्टेड ऑफ यूके। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ यूएसए यूजिंग दिस लैंग्वेज। यूएसए की क्या हुआ भाषा इंग्लिश है वाकई में? मेरा सवाल है आप सभी से, am I audible? Yes, sir. यूएसए की भाषा इंग्लिश है क्या? Yes, absolutely. बट ये कब से उसकी भाषा है? गूगल पे सर्च मारिएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरी वन ऑफ यू टू सर्च दिस इन गूगल। गूगल बाबा सभी लोग जानते होंगे। दिस इज द रियलिटी, द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन यूनाइटेड स्टेट्स इज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। जिसको नहीं पता ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का मतलब, इट सिंपली मींस जहां पर ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज बसाई थी, जहां से उन्होंने अपने लोगों को जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री यानी कि ब्रिटेन के थे, उनको वहां पे स्थायी रूप से बसाया गया था। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट टर्म यूएसए स्टार्टेड यूजिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। ऑफिशियली तब भी उसकी भाषा नहीं थी। ये 16th एंड 17th सेंचुरी में यूज किया गया था एंड उसके बाद 18 एंड 19 में ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। और आज की डेट में सभी लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, यदि इंग्लिश की बात की जाए कुछ अननोन लोगों के साथ, यूएस यूपी के लोगों के साथ, तो इंग्लिश कहां की? यूएसए की। इंग्लिश कहां की? यूएसए की। हम कहां की भाषा बोल रहे हैं? यूएसए की। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट ऑफ यूएसए, इट इज ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये यूके की भाषा है, यूएसए की तो भाषा है ही नहीं दूर दूर तक। ओके, सो ये बात कितने लोगों को नहीं लगी है? Can I get to know the students and everyone who were not aware of this thing? कितने लोग जानते थे यूएस ये भाषा यूएस की थी ही नहीं कभी? ओके, वेरी मच, थैंक यू। सो यहां से हमें पता चल सकता है, एक बात और छोटी सी जानकारी दूंगा। यूएस को अडॉप्ट कैसे की? यूएस ने इस भाषा को कैसे न्यू जनरेशन में अडॉप्ट कराया? इस बारे में पता है आप लोगों को? यू पीपल नो अबाउट? यस और नो? बहुत बड़ा ताज्जुब है, आप लोग वाकई में सोच नहीं सकते। कॉमिक्स जानते हैं आप लोग? कॉमिक्स was the invention of this country. इस कंट्री का इन्वेंशन था जिसने इसको थोपा बच्चों के ऊपर। It was a kind of a depiction as well as the pressure to read something which was written against the pictures. ये कॉमिक्स के माध्यम से न्यू जनरेशन को भाषा सिखाई गई थी, वहां से स्टार्ट हुई, वहां से न्यू जनरेशन ने इसको अडॉप्ट किया और वहां से आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कंट्री यू नो दैट इंग्लिश इन्हीं की भाषा है, यहीं से चालू हुई। सो दिस इज समथिंग जो हमें जानना चाहिए। इंग्लिश इज नॉट अ टिपिकल थिंग, इवन ये यूएस ने भी अडॉप्ट किया था। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और है यहाँ पे, जैसे मैंने कुछ देर पहले भी बोला था, हम इंग्लिश को क्यों यूज करें? मैंने एक आंसर दे दिया था उस समय भी, आई आंसर दैट थिंग, क्योंकि it has become such a common language to use all over the world. आप अपने स्किल्स को शो करना चाहते हैं अराउंड द ग्लोब, दिस इज द ओनली लैंग्वेज। एक कंट्री के बारे में बोलना चाहूंगा, ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, नॉट मेनी डिफरेंट कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम as well as very much well known. Mercedes, BMW जानते हैं सभी लोग? Yes, sir. कहाँ की है? Germany. Very much well. आप लोगों को पता नहीं होगा, जर्मनी इज अ कंट्री हु इज वेरी मच फार फ्रॉम इंग्लिश। यदि आप उनसे इंग्लिश भाषा में बात करना पसंद बोलेंगे, वो इंग्लिश में आपको जवाब नहीं देंगे, कतई जवाब देंगे ही नहीं। Till the time they are not getting to know about, you do know only this language to communicate something to them. ऐसा नहीं है,
वो बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। इसका कारण कुछ और है, what was the cause of this thing, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इंग्लिश हम क्यों यूज करें उसके पीछे का कारण जानते हैं। चलिए, यदि मैं गलत नहीं हूं, बहुत साल पहले की बात करें तो हमारा नॉर्थ इंडिया वाज कंसीडर्ड टू बी वेरी मच इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल माना जाता था। एक छोटी सी पिक्चर बताऊंगा। दिल्ली से पहले हमारी जो अंग्रेजों के जमाने की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट व्हेन द ब्रिटिशर्स वर हियर इन कंट्री, इन आवर कंट्री, हमारी कैपिटल क्या थी उस समय? सर प्लीज अ बिट लाउडर। कैलकटा वाज द कैपिटल। कोई बता देगा कारण क्या है? क्या था ब्रिटिशर्स ने वहां पे उसको कैपिटल बनाया था? It's near the coast. It's near the coast. This was not the only reason, my dear. Near the coast तो बॉम्बे भी था, near the coast तो चेन्नई भी था, near the coast तो कन्याकुमारी हमारा कर्नाटका, कन्याकुमारी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। And sir, there are more industrial areas. Just Okay. Please get to know about the reason. Thank you बच्चे, thank you very much. सवाल इम्पोर्टेंट है और उसका जवाब जानना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट और है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को अपने इक्विवेलेंट माना। उनका लिटरेचर बहुत रिच था। यदि हम लिटरेचर की बात करें, इंटेलेक्चुअलिटी की, हमारी समझ की बात करें, कैलकटा के लोग वाज कंसीडर्ड टू बी वेरी मच इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल माने जाते थे, इसलिए कैपिटल वेंट देयर एज नेशनल कैपिटल फॉर ब्रिटिशर्स, इसलिए दिया गया था। यही कारण था। This was the only reason कैलकटा बनाया गया था, ये मुख्य कारण था। हाँ, इसके अलावा कुछ कारण और थे, जैसे कि बच्चे ने बोला पोस्ट था एंड सम अदर थिंग्स टू। तो ये एक मुख्य कारण था। क्या आज की डेट में, यदि मैं गलत नहीं हूं, एक छोटा सा सवाल लिखा हुआ है, साउथ इंडियंस आर कंसीडर्ड मोर इंटेलेक्चुअल। क्या हम इस बात पे बिलीव करते हैं? डू वी बिलीव ऑन दिस और नॉट? yes, sir. कारण बता दें एनीवन प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आया हूँ, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट द इंटरेक्शन। रेडी हैं आप सभी इंटरेक्शन के लिए? Yes, sir. जो बच्चे जवाब जानते हैं उसका हाँ या ना में कोई गलत है सही है इसका फर्क नहीं पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू बी वेरी मच रिस्पॉन्सिव दिस टाइम। साउथ इंडियन इंटेलिजेंट माने जाते हैं, कारण बता दें प्लीज। प्लीज। जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है वहाँ पे। मैंने लोगों की बात करी, लोग ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं, कारण क्या है? एजुकेशन फैसिलिटीज। एजुकेशन फैसिलिटीज। ओके, So they are very fluent in the language, English language. They are very. चलिए छोटी सी बात जानते हैं। प्लीज सपोर्ट दीजिएगा। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। वेरी मच वेल। उसके नीचे उसके ऊपर कर्नाटका है, कौन सी बोली जाती है? ओके, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, उड़ीसा। यकीन मानिएगा मैं आपको लिख के दे रहा हूं। इफ यू आर नॉट बिलीविंग ऑन मी, प्लीज विजिट दैट प्लेसेस। मलयाली मींस द पीपल हु आर द रेजिडेंट ऑफ केरला, उनसे जाके बात कीजिएगा। दे आर एक्सपर्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। मलयालम इज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज इन इंडिया। एक सबसे ज्यादा टफेस्ट लैंग्वेजेस में से एक आती है मलयालम। और मलयाली लोग दे आर वेल ट्रेन्ड, दे आर वेल नोन to use all the dimensions of this Malayalam language। चारों dimensions इस भाषा के आते हैं। मलयालम के अलावा they can speak Tamil, they can speak Kannada, they can speak Telugu। ये तीनों चारों भाषा को बोल लेते हैं। दूसरा, इंग्लिश उनके एजुकेशन सिस्टम में है और हिंदी एक कंपल्शन सब्जेक्ट के तौर पर उनको दिया जाता है। कितनी भाषाएं हो गई? तमिलनाडु वालों की बात करें तो तमिलनाडु तमिल जानते हैं, तेलुगु जानते हैं और कन्नड़ जानते हैं। मलयालम उनके लिए बिट डिफिकल्ट है बोलने के लिए, बट दे कैन लिसन, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट अ मलयाली इज सेइंग इन मलयालम लैंग्वेज। जाके पता कीजिएगा, मैं बहुत जगह गया हूं, मैंने बहुत बच्चों को ट्रेनिंग दी है जो मलयाली थे। दे आर वेरी मच फ्लुएंट टू स्पीक, वो मल्टीपल भाषाओं को जानते हैं। तो होता क्या है, मेरे पे विश्वास मत कीजिएगा, प्लीज सर्च द गूगल। देयर इज अ फैक्ट, यदि आप मल्टीपल भाषाओं को जानते हैं तो आपको एक रोग नहीं होता। वो रोग है भूलने का, जिसमें आप भूल जाते हैं चीजों को। एक एज के बाद आप भूलने लगते हैं चीजों को, बट यू विल नॉट बी अफेक्टेड विद दैट थिंग बिकॉज़ यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड टू यूज मल्टीपल लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम। मैं इस समय मल्टीपल भाषा बोलता हूं, जैसे जापानीज मैंने सीखी है, इंग्लिश मेरी लव लैंग्वेज है, मैं इसे प्यार करता हूं, एंड हिंदी मेरी मदर टंग है। इसके अलावा कुछ डायलेक्ट्स और हैं। आई कैन यूज द डायलेक्ट ऑफ माय होम टाउन, मेरा जो गांव है, और दूसरा डायलेक्ट मेरा ब्रजभाषा जहां मैं पैदा हुआ। तो
because of these all things I can assure myself कि मुझे ये बोलने वाली बीमारी नहीं होगी, and I am regularly learning more and more languages. ये सब जापानीज में जाके बोलूंगा नहीं, मैं और भाषा भी सीखूंगा, कुछ अपने देश की होंगी, कुछ बाहर की होंगी. So the thing is, ये अकेला कारण है जिसके कारण साउथ इंडियंस इंटेलिजेंट बोले जाते हैं, because they can use their efficiency of mind quite much better than us. This is the only cause. हम लोग हिंदी के साथ इंग्लिश स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, पहले स्टैंडर्ड से लेके 12वीं क्लास तक आपके साथ इंग्लिश जुड़ी रहती है. यदि टीचर्स इंग्लिश बोलना बंद कर दें, मजा है आप लोग इंग्लिश बाहर कॉलेज करके बोल रहे, गलत कह रहे हो क्या? Because of the efforts of those all teachers who are there in that school, because of their efforts, you become a bit more perfect in this language. Otherwise, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं हिंदी भाषा. और ultimately, when you get such a place जहाँ पर you need to show, you need to express yourself differently, भाषा ultimately दूसरी आती है जहाँ पर आप अपने आप को hesitate feel करते हैं. How about clear? Yes, Is that clear to everyone? Yes, sir. Okay, very much well. So, एक जो मैंने अपनी स्लाइड यहाँ पर रखी है, पीपीटी रखी है, अंडरस्टैंडिंग रखी है, ये इसी मिथ को लेके है. एक छोटा सा मिथ और है कि इंग्लिश बोलना टिपिकल है. ऐसा कई लोग मानते हैं. मैं हजारों बच्चों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, कॉलेजेस में पढ़ा चुका हूँ, उनके लिए इंग्लिश बहुत टफ है. ये मैंने पहले ही बता दिया, हिंदी के कंपैरिजन में कितनी यूज है. और एक चीज और, इंग्लिश बोलने में टफ है, इसको रिमूव करना चाहता हूं. किसी भी भाषा के 4 पैरामीटर्स होते हैं. यहां पे आपको दिख पा रहा होगा LRWNS, यानी कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. बिलीव मी, यदि हम इन चारों को एक फैमिली का पार्ट मानते हैं, होता क्या है बेसिकली, these all are considered to be the dimensions of all the languages. ये 4 डायमेंशंस के तौर पे माने जाते हैं हर भाषा के, किसी एक भाषा के नहीं. हिंदी भाषा के भी 4 डायमेंशंस हैं. और इन चारों डायमेंशंस में यदि मैं इन चारों को एक फैमिली का पार्ट मानता हूं, तो ये दिस इज वन ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ दिस फैमिली. ये इस फैमिली का सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है. यानी कि यदि आप सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे, यदि आप पढ़ेंगे तो अच्छा बोलेंगे. इफ यू आर राइटिंग समथिंग in English language, आप अच्छा बोलेंगे. Ultimately, all the benefits will be given to the speaking when you are doing this. और हम इन चारों में सबसे ज़्यादा टिपिकल इसी को मानते हैं. Listening, हम जानते हैं, we can listen the movies, we can listen the songs, we can listen the people, those who are giving the presentation, lectures, whatever they are giving. We can listen the teachers, but we do feel uncomfortability therein. स्पीकिंग, हम रीड बचपन से लेके पहली क्लास से लेके आप इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं. हमारी सबकी बुक्स जो सीबीएसई में, आईसीएसई में, इवन इन यूपी को, वहां पर भी रीडिंग आपकी इंग्लिश में होती है, एज वेल एज राइटिंग. मतलब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देके चल रहा हूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा. आज की डेट में टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेकिंग द लिस्ट व्हिच इज गिवन टू यू बाय योर मॉम. आलू डबल ए एल, हिंदी में नहीं लिखता कोई. गलत कह रहा हूं क्या? आप अपनी लिस्ट भी लिखने में इंग्लिश यूज करते हैं, बट यू डू फील, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू फील दिस अनकंफर्टेबिलिटी. ये सबसे ज्यादा आसान है, बोलना ही सबसे ज्यादा आसान है. लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इज रियली क्वाइट इजी, बहुत आसान है. सॉरी, ये ज्यादा टिपिकल है. स्पीकिंग इज रियली क्वाइट इजी, ये ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली. दीस आर 3 डायमेंशन, रेस्ट 3 डायमेंशन. चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था उस भाषा को लेके जो आमतौर पे हमारे सामने आती है अनकंफर्टेबिलिटी के तौर पे. यहाँ पे कुछ रूल्स मैं बताना चाहूंगा, एंड these all rules are not only good for the students as well as for every one of us, those who are sitting, every one of us. चलिए जाने की कोशिश करते हैं. This is the first rule. What this is, which makes us to know what our respect is. हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे अपना सम्मान. हम अपना सम्मान बरकरार कैसे रख सकते हैं? How we can have our own respect with ourselves first. दूसरे की नजर में हमारी रिस्पेक्ट है कि नहीं, इसको तो साइड में रखिएगा. इसका मतलब क्या है? क्या आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं? Do you really respect yourself? सुन पा रहे हैं सभी लोग मुझे? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट पहले करें. Forget about who all are not giving you respect. Respect to yourself is the first thing. चलिए इसे जानते हैं how. The first thing, अपने आप को रिस्पेक्ट वाकई में दिलानी है. Boys and girls, please.
यदि अपने आप को वाकई में रिस्पेक्ट दिलानी है तो डू नॉट डू वन थिंग, बाय नो मीन्स डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन द वर्ल्ड। अपने आप को किसी भी हालत में कंपेयर कीजिएगा ही मत।